Hello guys, today we are going to learning about the programming technique. In this video, we shall discuss about programming techniques, structured programming, some kinds of structured programming. First, we discuss programming techniques. Some programs are developed by using some programming techniques. कुछ प्रोग्राम जो हैं उसको हम programming techniques use करके develop करते हैं. Some important programming techniques are as follows: structured programming, object-oriented programming, event-driven programming, visual programming. First is structured programming. Structured programming is a programming technique in which a program divided in small units called modules or subprogram. Structured programming एक ऐसी programming technique है जिसमें program को एक small units में small parts में divide कर दिया जाता है, उसको हम modules या subprogram कहते हैं. Each module has different instructions to perform specific tasks. हर मॉड्यूल्स के अंदर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं. दीज मॉड्यूल्स एग्जीक्यूटेड व्हेन द मेन फंक्शन कॉल इट. और ये मॉड्यूल्स जो हैं तब भी एग्जीक्यूट होंगे जब इनको मेन फंक्शन से कॉल किया जाएगा. Structured programming are very easy and simple technique for writing programs. Structured programming जो सी बहुत ही आसान है और एक सादा सी टेक्निक है प्रोग्राम लिखने के लिए, क्योंकि हम इसको मॉड्यूल्स में लिखते हैं प्रोग्राम को, तो हमारे लिए एरर फाइंड करना, कोड को मॉडिफाई करना, राइट करना बहुत इजी है. Following types of structured programming is sequential structure, conditional structure, iterative structure, function call. First is sequential structure. In sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in the program. Sequential structure एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो प्रोग्राम में लिखी गई होती हैं, राइट की गई होती है. The control flows from one statement to other in a logical sequence. कंट्रोल जो है एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट उसी लॉजिकल सीक्वेंस में फ्लो करेगा जिस सीक्वेंस में वो प्रोग्राम में लिखी गई हैं. All statement are executed exactly once. तमाम स्टेटमेंट जो हैं वो एक दफा ही एग्जीक्यूट होंगी. It means that no statement is skipped and no statement is executed more than once. इसका मतलब ये कोई भी स्टेटमेंट जो कि एक सीक्वेंस में लिखी हुई है ना तो स्किप हो सकती है और ना ही एक स्टेटमेंट को एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट करेगा. नीचे एग्जांपल है एंट्री और ये कंट्रोल की, उसके बाद एक्शन 1 परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद एक्शन 2 परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद एक्शन 3 परफॉर्म करेगा, उसके बाद अगर कोई एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा, नहीं तो कंट्रोल एग्जिट कर देगा. Second, conditional structure. A selection structure select a statement or set of statement to execute on the basis of condition. एक selection structure जो है वो एक statement को या set of statement को condition की behalf पे select करता है कि कौन सी condition कब true होगी और वो उसके true होने के बाद कौन सी statement या set of statement execute करेगा. Statement or set of statement are executed when a particular condition is true and ignore when the condition is false. स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब उसके लिए लिखी गई खास कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज वो इग्नोर कर दी जाएंगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है. इट इज आल्सो नोन एज ब्रांचिंग और कंडीशनल स्ट्रक्चर. इसको हम ब्रांचिंग या कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं. नीचे की एग्जांपल है इफ a is equal to true then control flow to b, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगी तो else c और एंड इफ. कंट्रोल इनपुट हुआ a इज इक्वल टू ट्रू होगा तो वो b पे चले जाएगा, अगर a फॉल्स होगा तो वो c पे चले जाएगा और उसके बाद इफ कंडीशन एंड हो जाएगी. Iterative structure. A repetition structure execute a statement or set of statement repeatedly. एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को कई दफा एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं. इट इज आल्सो नोन एज लूप. इसको हम लूप भी कहते हैं. लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पस. लूप्स को हम दो पर्पस के लिए आमतौर पे यूज करते हैं. टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. एक स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हम एक खास नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए लूप्स यूज करते हैं. टू यूज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, या फिर हम एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो हैं 1 2 3 एक सीक्वेंस में यूज करने के लिए वैल्यूज को लूप को यूज करते हैं. ये एक एग्जांपल है, उसमें एग्जांपल देखिए, इसमें उसने
आई को 1 इनपुट करवाया, उसके बाद कंडीशन आई है आई लेस देन इक्वल टू 3। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ लूप में चले जाए, फॉल्स है तो एग्जिट होके आउटपुट पे चले जाए। आई के अंदर हमने 1 इनपुट करवाया था, आई लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप में इनपुट होगा। उसके बाद आई में एक इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद दोबारा कंडीशन पे चले जाएगा। आई में 2 हो गया, आई लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अब भी ट्रू है, देन वो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा। उसके बाद आई में इंक्रीमेंट एक करेगा, आई इज इक्वल टू 3 हो गया, फिर दोबारा कंडीशन पे जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 3, नाउ आई इक्वल टू 3, कंडीशन अब भी ट्रू है, देन वो बॉडी ऑफ लूप में इनपुट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा इंक्रीज करेगा, एक आई में इनपुट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा एक की, आई अब आई हो गया 4, दोबारा कंडीशन पे जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, बिकॉज आई इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। वो कंट्रोल जो है वो कंडीशन से बाहर निकलेगा, आउटपुट पे आएगा और एंड ऑफ द प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा और प्रोग्राम एंड कर देगा। लास्ट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड द अदर 3 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।